नमस्ते। शिक्षण आजीविका परिसंवाद में आपका स्वागत है। वेलकम टू एजुकेशन एंड करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम। वेलकम टू ECOM. About me, I would like to introduce myself first. Myself Vivekanand Mane. I am certified life skill trainer from Harvard University and a certified counselor for the parents and students. I am yoga instructor and certified nutritionist also, and I am working as a head teacher from last 17 years in the education field, and from last 5 years I am in the marketing field also, and working as a coach or a trainer in same industry also from last 3 years. So this is my little introductions myself. My dear friends, here are some certifications regarding to me. I am certified from the Durva Education Dnyaneshwar Yashwantrao Sapkal Foundation, Durva Education and Counseling Training Institute, Mumbai. They have given me certificate related to it, and this is a very nice institute for who want to learn the counseling, especially for the students psychology and parents psychology. I have certifications from Pankaj Shukla Institutes of Yoga and Naturopathy, and the Life Skill University, the Skillisan Society of Singapore. It is the unit of Harvard University. I am certified from that also as a life skill trainer, and I have certificate of participation since the Calmpreneur coaching program related to mind mastery, and so I have lots of other certifications also, but that is not possible due to the very less time. I will show all that here, and that is not needed also. So I am a creative, experienced, well educated, and the competent person for today's this events, and I am deliver this speech to you. This speech is addressing students, parents, and teachers also, or educational institute heads also. In other sense, this speech is related to everyone who is related to education, and I think on this planet nobody is person who is not related to education. So that speech is very important for everyone, but this is very important for student, teachers, and parents also, because we are addressing their problems in this speech. I have experience of training and coaching. These are some photographs related to training and coaching. I have done the charity works in, and especially in rural empowerment. We are working with our organization, and I have work experience as a team leader with lots of teams in different sectors. I am also founder of the Smart for You and Weather Life and the Skill Specialist Private Limited, Finage, and much more companies. Also, they are working in different sectors. So my dear friends, we will start it with the quotes, and the quote is, शिक्षा हमें वह पंख देती है जिनके कारण हमें ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। सब ये इस बात को मानते हैं कि शिक्षा ही वह पंख है जिसके कारण हम ऊंचे आसमान में उड़ान भर सकते हैं। तो ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसका क्या इम्पोर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बच्चे ही हमारे राष्ट्र एवं परिवार का भविष्य है। आप सभी जानते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे घर में बच्चे होते हैं या स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, कोई भी बच्चे, वो हमारे राष्ट्र का एवं परिवार का भविष्य उन पर निर्भर होता है। इसलिए हर माता पिता का ये सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर खुश और सफल इंसान बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने। और जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर ट्रेनिंग देने का, तो उसको पूरा वर्ल्ड उसको वेलकम करे, यानी एक उसके अंदर एक ग्लोबल सिटीजनशिप डेवलपमेंट हो, एक वैश्विक नागरिक वो बने। ऐसे हर माता पिता की कामना होती है। हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा या तो डॉक्टर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, या फिर जुडिशरी में किसी अच्छे पद पे काम करे, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस है जिसमें हम IAS है, IPS है, या CEO है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोलते हैं हम जिनको, फिर पायलट है, कैप्टन है, इंजीनियर्स है, फिर व्यावसायिक है यानी बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योरशिप है, और गवर्नमेंट जॉब्स है। ये आई करियर में उसे अवसर मिले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो काम करे, कहीं ना कहीं वो अच्छा करियर बनाए, उसकी आजीविका अच्छी तरीके से चले, ये हर माता पिता की
कामना होती है। तो किसी भी आजीविका को जब हम चुनते हैं तो उसमें एक अच्छा इनकम होना चाहिए, दूसरा उसको रेपुटेशन होना चाहिए, तीसरा उसमें कुछ सिक्योरिटी होनी चाहिए, और चौथा उस काम को करते वक्त काम करने का आनंद भी उसे आना चाहिए, और उसके पास कुछ समय भी होना चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सके। तो सफल करियर बनाए और आत्मनिर्भर बने, सम्मान पाए, खुशहाल जीवन जी सके, यह हर माता पिता का एक सपना होता है। और इसके लिए क्या, आज की डेट में अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनके जीवन में करियर के बेस्ट ऑप्शन ना होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें हैं। कई सारे लड़कों की शादियां तक नहीं हो रही है क्योंकि उनके पास अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है। तो इस सदी में अगर हमको एक बेहतर जिंदगी जीनी है तो हमारे पास करियर का बेस्ट होना अनिवार्य है, वो इसेंशियल बन जाता है। इसके लिए आवश्यकता है शैक्षणिक सफलता की, यानी एजुकेशनल सक्सेस की, यानी हम जिसको हम एकेडमिक एजुकेशन बोलते हैं। वैसे तो मेरा एक व्यक्तिगत तौर पे कहना है कि सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन से सभी सफलताएं प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी सभी सफलताओं की नींव में एकेडमिक एजुकेशन आता है। ये क्यों मैंने कहा, ये कभी जब आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे तो आपको मैं विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा कि शैक्षणिक सफलता से जीवन की सभी सफलताएं हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जीवन की सभी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में शैक्षणिक सफलता यानी एकेडमिक एजुकेशन सक्सेस जिसे हम कहते हैं वो नितांत आवश्यक होता है। इसलिए बतौर माता पिता हम अपने बच्चों पर पैसा निवेश करते हैं, हम बच्चों की पढ़ाइयों पर पैसा और समय दोनों का निवेश करते हैं। टाइम इन्वेस्टमेंट आता है, मनी इन्वेस्टमेंट आता है, और बच्चों का हार्डवर्क भी उसमें शामिल होता है, वो भी उनकी तरफ से बहुत हार्डवर्क करते हैं। इस तरीके से सब मिलकर कोशिश, मिली जुली कोशिश करते हैं कि उसका जीवन किसी तरीके से खुशहाल हो जाए, क्योंकि बेहतर शिक्षा ही बेहतर भविष्य बना सकती है। अगर आपको बेहतर भविष्य बनाना है तो आपके पास एक चाबी है, एक कुंजी है बेहतर भविष्य की, और वो है आपकी शिक्षा, आपका एजुकेशन। तो शैक्षणिक सफलता ये शिक्षा व्यवस्था, पाठशाला, अभिभावक, अध्यापक तथा विद्यार्थियों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य यही होता है। देखा जाए तो शैक्षणिक सफलता प्राप्ति तभी संभव है जब शिक्षा प्रणाली, अध्यापक, अभिभावक, विद्यार्थी एकजुट होकर सही दिशा और सही तकनीक, यहाँ मैं दो शब्दों पर जोर दे रहा हूँ, एक तो हमारा डायरेक्शन सही होना चाहिए और दूसरा हमारा टेक्निक सही होना चाहिए। हमारे पास अगर डायरेक्शन गलत है और टेक्निक सही है तो भी हम नहीं पहुंच पाएंगे, और हमारे पास अगर टेक्निक गलत है और हमारा डायरेक्शन कितना भी सही क्यों ना हो, यानी हमें अमेरिका जाना है, हमारा डायरेक्शन अमेरिका की तरफ है लेकिन हम चलते हुए जा रहे हैं तो हम नहीं पहुंचेंगे जिंदगी में। हमारे पास टेक्निक होनी चाहिए, यानी हमारे पास हवाई जहाज होना नितांत आवश्यक होता है, जो कि इसका टेक्निकल पार्ट होता है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। और शैक्षणिक सफलता जो होती है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अभिभावक यानी जिनको हम पेरेंट्स बोलते हैं, अध्यापक यानी जिनको हम टीचर बोलते हैं, और अध्ययनार्थी जिनको हम स्टूडेंट्स बोलते हैं। इन सब पर निर्भर होती है किसी भी बच्चे की शैक्षणिक सफलता। हर राष्ट्र की सरकार देश तथा विश्व हित के लिए शिक्षा पद्धति एवं शिक्षा प्रणाली विकसित करती है तथा उसे लागू करती है। जैसे कि हमारी भारत सरकार ने भी इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को इंट्रोड्यूस किया था 2020 में, यानी लगभग बहुत लंबे अरसे से हमारे जो देश की एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन इसको आमूलाग्र तरीके से यानी पूरी तरीके से बदलने की कोशिश यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम नेप बोलते हैं उसमें की गई है। यानी सरकार उसकी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि हमें एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है, एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा बनाना है जिससे कि बच्चों को बेहतरीन करियर के अवसर मिल सके। सरकार अपना काम कर रही है, इसमें सरकार ट्रेनिंग का भी काम कर रही है, टीचर्स को उनको भी अपग्रेड और अपडेट कर रही है, और हमारे जैसे लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम भी किसी से ले रहे हैं और किसी से को दे रहे हैं। तो सरकार का काम करे, लेकिन इसके बावजूद भी बतौर माता पिता बच्चे की शैक्षणिक सफलता के लिए हम चिंतित रहते हैं, समय एवं पैसों का निवेश भी करते हैं और सफलता की हम मंगल कामना करते हैं। बस हम कॉलेज की या स्कूल की फीस भरते हैं, अपना समय देते हैं बच्चों को, पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, उनकी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, रोज उनसे होमवर्क करवा लेते हैं, क्या न जाने क्या क्या जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें हम इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ रहते हैं, समय बिताते हैं, और फिर हम कामना करते हैं कि मेरे बच्चे का करियर अब सफल हो जाए। सेम वैसा ही टीचर भी करते हैं। अगर पाठशाला, विद्यालय, महाविद्यालय में अध्यापक विद्यार्थियों की सफलता के लिए सामर्थ्य के अनुसार, देखो हर अध्यापक का सामर्थ्य सेम नहीं होता, जिस तरीके से हर सीखने वाला
कि कॉम्पिटेंसी सेम नहीं होती, उनकी क्षमताएं सेम नहीं होती, उसी तरीके से हर सिखाने वाले की भी योग्यता समान नहीं हो सकती। तो उनकी योग्यता के अनुसार वो यथोचित प्रयास करते हैं और कामना करते हैं कि बच्चों को शैक्षणिक सफलता प्राप्त हो, तथा प्रत्येक विद्यार्थी भी अपने सामर्थ्य के अनुसार भविष्य के लिए कड़ी मेहनत एवं लगन से पढ़ाई करता है ताकि उसे अच्छे ग्रेड मिल जाए। इस प्रकार किसी भी बच्चे की शैक्षणिक सफलता के 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं, उसे शैक्षणिक सफलता दिलाने में मदद करते हैं, जिसमें पहला स्तंभ आता है जिसको हम पहला पिलर बोल सकते हैं, सरकार। सरकार वो पहला पिलर है जहां से इसकी पॉलिसी का निर्धारण किया जाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। दूसरा है शैक्षणिक संस्थान, जिसको हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बोल सकते हैं या कोचिंग क्लासेस बोल सकते हैं, ये सभी इसमें आते हैं, संस्थान में आते हैं। तीसरा अध्यापक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चौथा इसमें माता पिता, और पांचवा हम देखें तो लगभग जो स्टूडेंट है उनका भी इसमें बहुत अहम रोल होता है, अहम भूमिका उनको निभानी होती है। तब जाकर जब ये सभी लोग सही दिशा में प्रयत्न करेंगे, सही तकनीक के साथ प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, तब जाकर एक विद्यार्थी अपना सफलतापूर्वक शिक्षा का जो उसका प्रवास है या जर्नी है उसको पूरा कर सकता है और उसको शैक्षणिक सफलता मिल सकती है, जिसके बदौलत वो अच्छा करियर चॉइस कर सकता है और अच्छे करियर के कारण वो खुशहाल जिंदगी जी सकता है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो बात आपके समझ में आ चुकी। ये तो कलरफुल पिक्चर थे, लेकिन अभी ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है। ये शैक्षणिक सफलता है टट्टी कूदने की घुड़दौड़ है, यानी जिसको हम हर्डल्स बोलते हैं, यानी अड़थड़े की शरीयत है। इसमें बहुत सारे हर्डल्स को पार करना होता है, बहुत सारे इसमें हर्डल्स है, और इन सबको पार करके जब उस तरफ जाते हैं तब आप विनर कहलाते हैं, क्योंकि हम कंपटीशन के ज़माने में जीते हैं। तो बहुत सारा कंपटीशन है इसमें, बहुत सारे बोर्ड्स है, बहुत सारी अलग अलग बातें हैं, मीडियम्स है, न जाने क्या क्या है इसमें। इसको अगर विस्तार से बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि शैक्षणिक सफलता ये एक हर्डल्स है, यानी इसको मराठी में हम कहते हैं अडथळ्याची शर्यत आहे। तो इसमें क्या क्या हर्डल्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम्स को अगर हम समझेंगे तो हम सॉल्यूशन तक पहुंच पाएंगे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उस प्रॉब्लम को पहले लिख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। एक बड़े लेखक रहे हैं, संशोधक रहे, उन्होंने कहा है कि किसी भी समस्या को अगर आप ठीक ठीक तरीके से लिख सकते हैं तो उस समस्या को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें समस्या को देखना होगा। तो पेरेंट्स के प्रॉब्लम्स है, टीचर्स के भी प्रॉब्लम्स है, स्टूडेंट्स के भी प्रॉब्लम्स है, और इन सब के प्रॉब्लम्स को मिलकर हम बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम्स के सभी प्रॉब्लम्स है। अभिभावकों की क्या समस्या है? आप सभी अभिभावक है यहाँ पर, माता पिता है, पेरेंट्स है। पेरेंट्स की क्या समस्या है? जो बच्चों के माता पिता है, अभिभावक, इनको हम 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया करते हैं, यानी इनके 3 प्रकार है। अभिभावक या पालक के, पेरेंट्स के अगर देखेंगे तो अनपढ़, इलिटरेट भी अभिभावक होते हैं, शिक्षित यानी एजुकेटेड अभिभावक होते हैं, उच्च शिक्षित यानी बहुत ही हाईली एजुकेटेड अभिभावक होते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अनपढ़ यानी मजदूर लोग होते हैं, बहुत सारे मजदूर लोग अनपढ़ होते हैं। अभी तो पढ़े लिखे लोगों को भी मजदूरी करनी पड़ रही है, वो बात अलग है, लेकिन शिक्षित बोलेंगे तो हम टीचर्स का उदाहरण ले सकते हैं, वे एजुकेटेड होते हैं। और हाईली एजुकेटेड लोगों की हम बात करेंगे तो इनमें हम देखते हैं कि जैसे डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं या उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की होती है। जब अशिक्षित अभिभावकों की, माता पिताओं की या पेरेंट्स की हम बात करेंगे तो अभिभावक शिक्षक के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतर ना होना, शिक्षा के समझ ना होना, ये इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आर्थिक कठिनाइयों से ये जूझते हैं। स्कूल, घर, परिवार संबंध और शिक्षा क्षेत्र में पे इसका प्रभाव पड़ता है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस का। और पृष्ठभूमि और प्रासंगिक पूर्व जानकारी एवं ज्ञान एवं जागरूकता में कमी होती है इनके। बच्चों के विकास में माता पिता की भागीदारी की चुनौतियां होती है। वो कमा के खाएंगे या बच्चों को सिखाएंगे, यानी बच्चों को उतना समय वो दे नहीं पाते हैं। ऐसे बहुत सारे गन्ना मजदूरों को मैं जानता हूँ कि जिनके बच्चों को लगातार स्कूल में वो दाखिल नहीं कर सकते, दाखिल किए तो कंटिन्यू उनकी प्रेजेंट ही नहीं रहती है, वो अपने माता पिता के साथ माइग्रेट हो जाते हैं ऐसे एरिया में जहाँ उनको मजदूरी मिलती है, और उसके कारण उनके एजुकेशन को डिसकंटिन्यू किया जाना अनिवार्य हो जाता है। मतलब ये उनकी समस्या है, गन्ना मजदूर हम जिनको बोलते हैं। विद्यालयों में अनियमितता होती है, भेदभाव और सामाजिक कलंक और अलगाव का भी उनको सामना करना पड़ता है। शिक्षित अभिभावकों की अलग ही समस्याएं हैं, उनकी भी समस्या है। जैसे कि हम शिक्षित अभिभावक हैं, वी आर एजुकेटेड पेरेंट्स, और उनके पास क्या है कि बच्चों के लिए उन्नत शिक्षा क्षेत्रों में मार्गदर्शन करने के लिए ज्ञान समर्थन नहीं होना। यानी अगर इसको आसान भाषा में समझा दूं तो यह है कि मैं
पढ़ा हूँ मराठी मीडियम में और स्टेट बोर्ड का मैं विद्यार्थी रह चुका हूँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। और मेरा बच्चा अभी सीबीएसई में या आईसीएसई में पढ़ रहा है और उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इंग्लिश और उसका बोर्ड है सीबीएसई आईसीएसई। ऐसे में मैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जहाँ पढ़ाई की है वो माहौल या वो मेरी पढ़ाई अलग थी, इनकी पढ़ाई अलग है। मेरी शिक्षा अलग थी, इनकी शिक्षा अलग है। मेरे टेक्स्ट बुक अलग थे, इनके टेक्स्ट बुक अलग है। मेरा ज़माना अलग था, इनका ज़माना अलग। तो ऐसे में जो जटिल अवधारणाएं होती है, जिनको हम कॉम्प्लेक्स है क्रिटिकल कंसेप्ट कहते हैं, ऐसे क्रिटिकल कंसेप्ट को उनको समझाने में या उनको अच्छी तरीके से समझे बच्चों को, इसमें मदद करने में ये भी अभिभावक असमर्थ होते हैं। तो देखो, जो एजुकेटेड ही नहीं होंगे तो उनके बारे में तो बहुत दिक्कत होती होगी, समय की कमी होती है। ये जो एजुकेटेड है वो जॉब करेंगे या बच्चों को समय देंगे। इसलिए तो बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं मैंने कि जो खुद तो जॉब करते हैं, पति पत्नी, बच्चों को देने के लिए इनके पास पैसों की सिवा कुछ नहीं होता, समय तो इनके पास होता नहीं। और कुछ दिनों के बाद 12वीं होने के बाद, एचएससी पास होने के बाद समझ में आता है कि बच्चा तो हमारे हाथ से गया, इसका तो कोई फायदा नहीं, हमने तो उसको समय ही नहीं दे दिया। यानी समय की चुनौती होती है। पुराना और गैर सामयिक प्रासंगिक ज्ञान, अब हमारा ज्ञान पुराना हो चुका है और ज्ञान हमेशा आने वाले अगले पल में पुराना हो जाता है। अभी तो बहुत फास्ट अपग्रेडेशन का जमाना चल रहा है, जो कल तक नया था वो आज पुराना हो जाता है। हम अपग्रेडेशन की दुनिया में जी रहे हैं, तो हमारा ज्ञान अपडेटेड नहीं होता है और 90% लोग 95% लोग अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। कई सारे उसमें दिक्कतें होती है। तो कार्य जीवन संतुलन यानी वर्क लाइफ बैलेंस भी बनाना होता है, जॉब भी करनी है, काम भी पूरा करना है, बच्चों की तरफ भी ध्यान देना, तो ये सब संभव होना बहुत कठिन होता है। और इसी से आता है तनाव यानी स्ट्रेस। और ऐसे में स्ट्रेस में कई सारे जो माता पिता है वो बहुत कम उम्र में कई सारे स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज के भी शिकार बन जाते हैं। तो मेरे आपसे विनती है कि कृपया टेंशन को त्याग दे, स्ट्रेस ना ले, तनाव ना ले, तनाव को त्याग करें। यहाँ उच्च शिक्षित अभिभावकों की समस्याएं हैं, समय की कमी है उनके पास। They don't have time, they have knowledge, they have skills, attitude and behaviors, each and everything in there, but they don't have time to serve their child. And अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो काम करेगा या बच्चों को पढ़ाएगा। कोई डॉक्टर है बहुत बड़ा तो वो अपने अस्पताल में जाकर काम करेगा या बच्चों को पढ़ाएगा। उसके पास ज्ञान तो है भैया, लेकिन देने के लिए समय नहीं रहता, वेरी बिजी शेड्यूल रहता है। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, क्योंकि मैं किसी की निजता पर उंगली नहीं रखना चाहता। मैं बड़े 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 डॉक्टर को जानता हूँ, उनका बहुत बड़ा अस्पताल है, शायद करोड़ों करोड़ों रुपए का होगा वो, और वो कैंसर सर्जन है। और मैंने देखा है कि वो जब कैंसर का ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन थिएटर में वो खाना खाते, मतलब इधर से कोई ड्राई फ्रूट्स खिला रहा है और इधर ऑपरेशन कर रहे हैं। वो क्या समय देंगे अपने बच्चों को, जिनको खुद खाने के लिए समय नहीं है। दोस्तों, ये रियलिटी है, फैक्ट है, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरीके से। और उनको मैंने एक दिन बात भी की इस बारे में, लेकिन उन्होंने कहा कि सर अभी ये तो मेरा प्रोफेशन है, तो मुझे करना ही पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा अस्पताल बनवा लिया तो इसका कर्जा भी मेरे सर के ऊपर है, तो मुझे उसकी किस्त भी देनी पड़ती है और मेरे ऊपर बहुत सारा स्टाफ डिपेंड है, पेशेंट्स डिपेंड है, सब कुछ मुझ पर ही डिपेंड है, मुझे करना पड़ता है। लेकिन मेरे पास फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं रहता है। कैसे कैसे करेंगे बताइए? ये समस्या है। विद्यार्थियों की अलग समस्या है, इनका तो अलग ही लफड़ा चल रहा है, इनको अलग ही झंझट है। मोबाइल की लत लगी है, रील्स स्क्रोलिंग कर रहा है बच्चा, स्क्रोलिंग कर रहा है, स्क्रोलिंग कर रहा है, स्क्रोलिंग कर रहा है। मेरे यहाँ भी एक अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े कंपनी के मैंने आर्यम को देखा है, उसका बच्चा था जो रील्स देख देख के इंस्टाग्राम की उल्टा चल रहा था, यानी वो सीधा चल नहीं रहा था, वो उसी बातें उल्टी सीधी बातें कर रहा था। उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ा, क्योंकि मोबाइल का इतना गलत प्रयोग हम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि मोबाइल के प्रयोग को हम रोक सकते हैं, रोकना असंभव है, लेकिन उसका सही प्रयोग किया जाना चाहिए। अब रोकना तो असंभव है, हम इंटरनेट को नहीं रोक सकते, लेकिन उसका सही यूज अगर हम करेंगे तो यहाँ पर उससे कुछ आउटपुट अच्छा आ सकता है। तो बच्चों की पहली समस्या है तो मोबाइल की लत लग चुकी है और गलत लत लग चुकी है और गलत प्रयोग हो रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर क्या होता है, बच्चा मोबाइल लेके बैठा होता, माता पिता आते देखते हैं कि बच्चा मोबाइल पर खेल रहा है, गेम खेल रहा है, या कुछ तो रील्स देख रहा है या कुछ कर रहा है उल्टी सीधी एक्टिविटी, तो बच्चा पे माँ बाप गुस्सा करने लगते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं उनको, नालायक तुझको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्या, हमेशा जब देखो तब मोबाइल लेके बैठा है हाथ में, कुछ नहीं करता। और इस तरीके से जब आप डांटते हैं तो उनके मन को आप क्षति पहुंचाते हैं, उनको आहत करते हैं, उनको दुखी करते हैं। और मेरी आपसे एक पेरेंटिंग कोच के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक पॉजिटिव पेरेंटिंग स्किल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, कभी अपने बच्चों पर गुस्सा मत कीजिए, चाहे उनसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो।
आपको उन्हें समझना होगा, अच्छी तरीके से समझना होगा, और समझने के बाद उनके साथ कम्युनिकेट करने का प्रॉपर वे होता है, उस वे से आपको कम्युनिकेट करना होगा। और आप नहीं कर रहे तो आप कृपया किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो इसमें प्रोफेशनल है, जो काउंसलर है, और जो अच्छी तरीके से आपके बच्चों को काउंसलिंग कर सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कृपया गुस्सा ना करें। मोबाइल का शिक्षा में सही उपयोग ही समाधान है। हम मोबाइल के उपयोग को बंद तो नहीं करवा सकते, लेकिन उसका सही उपयोग करना यही समाधान हो सकता है। और क्या है, सीखने की असमान गति होती है। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट बच्चे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट माहौल से आते हैं। कोई किसी का माहौल अलग है, किसी का माहौल अलग है, डिफरेंट डिफरेंट उनके माता पिता की जीन्स, हेरिडिटी सब कुछ अलग है, और ऐसे बच्चे अलग अलग आपके सामने बैठे हैं, उनके सीखने की गति समान नहीं होती है। कोई बच्चा एक आध चीज़ 5 मिनट में सीख जाएगा तो किसी को 5 दिन भी लग सकते हैं। फास्ट लर्नर होते हैं, मीडियम लर्नर होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं। और फास्ट लर्नर और स्लो लर्नर और मीडियम लर्नर को हम एक साथ बिठाते हैं तो फास्ट लर्नर थोड़ा आगे होता है, तो वो फिर उसका तो बहुत जल्दी काम हो जाता है पढ़ाई का, लर्निंग का, तो फिर कुछ ना कुछ उंगली करने लगता है। देखिए, आप क्लास में ऐसे बच्चे मिलेंगे कि जो बहुत होशियार है लेकिन वो नॉटी बहुत होते हैं, और स्लो लर्नर लगा रहा है, वो मेहनत कर रहा है, उसका मोटिवेशन कम होता जा रहा है, यार मैं इन बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता, मैं पीछे पड़ गया। उसके अंदर एक प्रकार का क्या बोलते हैं, न्यूनता उसके मन में जा रही है। तो ये सब होता है, सीखने की असमान गति होती है और सिखाने की गति मात्र समान होती है। अध्यापक सभी को समान गति से सिखाते हैं, बच्चे असमान गति से सीखते हैं। अध्ययनार्थी तेजी से सीखने वाले लर्नर्स के फास्ट लर्नर की प्रॉब्लम्स अलग होती है। वो तेजी से सीखते हैं, उनको ज़्यादा चाहिए हमेशा, अच्छा, या उनके बुद्धि को थोड़ा एक्स्ट्रा फूड चाहिए होता है, उनके ब्रेन को, तो वो प्रोवाइड करना अध्यापक को बहुत असंभव होता है जब क्लास में बच्चों की संख्या ज़्यादा हो, या फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीड लर्नर्स को एक साथ सिखाना पड़े। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? अध्ययनार्थी मध्यम गति से भी सीखने वाले होते हैं, आप जानते हैं सबको, धीमी गति से भी कुछ कुछ सीखते हैं। यानी ये बहुत बोरिंग लगते हैं टीचर्स को भी ऐसे बच्चे, और इनकी तरफ ज़्यादा कोई ध्यान भी नहीं देता है। वो भी खुद समझते हैं कि यार मैं तो पढ़ने लिखने लायक बना ही नहीं हुए, इनको हम बैक बेंचर्स भी बोल सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि बैक बेंच पे बैठते हैं, यानी पिछले बेंच पे बैठने वाले जो लोग होते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत अगली चेयर पर भी जा सकते हैं। ये तो मांझरा अलग है, इसके बारे में तो हम कभी सेमिनार में बताएंगे। बुद्धिमत्ता के आधार पर भेदभाव भी होता है क्लास में। जो होशियार बच्चे उनको अलग ट्रीटमेंट दी जाती है, जो नहीं है उनको अलग दी जाती है। अध्यापकों की बहुत सारी यहाँ पर समस्याएं होती है। पाठ की पुनरावृत्ति करना असंभव होता है अध्यापक के लिए, उसका रिपीटेशन नहीं किया जा सकता। और देखिए, हमारा ब्रेन की जो प्रतिभा है ना, हमारे ब्रेन की जो क्षमता है, जो कॉम्पिटेंसीज है, जो कैपेबिलिटीज़ है, जो कैपेसिटीज़ है, वो मसल्स की तरह होती है। अगर कोई इंसान लगातार 2-3 साल तक एक्सरसाइज कर रहा है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है, तो उसकी मसल्स बननी ही बननी है। ये रिपीटेशन के कारण होता है, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, सिर्फ रिपीटेशन के कारण मसल्स बन सकती है अच्छी तरीके से। इसी तरीके से ब्रेन में अगर हमारे नॉलेज की मसल्स को हमें बिल्ड करना है, स्किल्स की मसल्स को बिल्ड करना है, एटीट्यूड के मसल्स को बिल्ड करना है, पॉजिटिव एनर्जी की मसल्स को बिल्ड करना है, ब्रेन में जितने भी न्यूरोपाथ हमको डिजाइन करने हैं वो सब रिपीटेशन से होते हैं। तो रिपीटेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन अध्यापक के पास इतना समय नहीं होता कि वो रिपीटेशन कर सके। उसको तो अपना पोर्शन खत्म करना होता है, वो तो आगे जाना चाहता है। वो ये चैप्टर खत्म हुआ तो बी चैप्टर, बी खत्म हुआ तो सी डी एफ जी जेड तक उसे जाना है, उसको अपना काम करना है। और उसके ऊपर प्रेशर भी तो होता है हेडमास्टर का और उस पूरे ब्यूरोक्रेसी का और पूरे डिपार्टमेंट का कि देखो ये आपका पीछे आपको करना होगा। और ऐसे में वो रिपीटेशन बहुत असंभव लगता है। संदेह निवारण में समय की दिक्कतें रहती है। 50 बच्चे और 50 बच्चों ने अगर 2-2 क्वेश्चन भी पूछे तो टीचर का तो दिमाग खराब हो जाएगा कि हर एक बच्चे ने 2 क्वेश्चन, यानी 100 को लगभग वहाँ पर 100 क्वेश्चन आएगा। और 100 क्वेश्चन में अगर हम मान लेंगे कि हम उनको जनरलाइज कर दे और उसके 20 क्वेश्चन करें और 20 क्वेश्चन को 5-5 मिनट अगर उनके जवाब देने हैं तो फिर वहाँ पे 100 मिनट अगर लग सकते हैं। तो इतना समय मैनेज करना बहुत कठिन होता है टीचरों के लिए। और बच्चे भी पूछते नहीं है संदेह, क्योंकि मैं पूछूंगा तो बच्चे हंसेंगे और मुझको समझेंगे कि ये तो बुद्धू है, इसको समझ में भी नहीं आता, वो शर्माते भी है। तो ये सब समस्याएं होती है। विद्यार्थियों के साथ कम समय अध्यापकों को बिताने के लिए मिलता है। वैसे भी जहाँ द्विशिक्षक की शाला हम जिसको बोलते हैं, यानी बायलिटरल जिसमें 2 टीचर्स होते हैं, एक हेड टीचर होता है और एक नॉर्मली दूसरा टीचर होता है। वहाँ तो एक एडमिनिस्ट्रेशन के काम में ही बिजी लगा रहा होता है, जो पेपर जुटाने, कागज जुटाने, ये वो सब वो करता रहता है। और विद्यार्थियों के साथ उसके
पास देने के लिए बहुत कम समय बचता है, वो भी क्वालिटी टाइम नहीं रहता है। पूरा निचोड़ लेने के बाद पूरी एनर्जी उसकी खत्म हो जाती है, तब जाके वो बच्चों की तरफ देखता है और उसको वो डिलीवर नहीं कर पाता। तो अध्यापकों की अपनी समस्या है और टीचिंग इज वर्क ऑफ हार्ट, ये दिल का काम है जी। यहाँ अगर दिल खुश तो सब कुछ। तो बहुत सारे टीचर्स निगेटिव एटमॉस्फेयर में भी काम कर रहे हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। शिक्षकों को कक्षा में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें शामिल है सीखने की शैलियाँ। विद्यार्थियों की शैलियाँ अलग अलग होती है, सिखाने की शैली एक ही होती है। शिक्षक को यह समझने की ज़रूरत है कि छात्र अलग अलग तरीके से कैसे सीखते हैं, अलग अलग तरीके से कैसे सीखते हैं। कोई पिक्चर के थ्रू सीखेगा तो कोई वीडियो के थ्रू, तो किसी को एक्टिविटी के थ्रू सिखाना होगा। कोई वर्बल, किसी की मेमोरी वर्बल होगी तो किसी की न्यूमेरिक होगी, तो किसी का पिक्टोग्राफ में यानी पिक्चर कैद करता होगा। तो हमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग शैलियों से बच्चे कैसे सीखते हैं इसे समझना होगा और उस तरीके से सिखाना होगा। इतना समय हमें टीचरों के पास होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पर उतना समय नहीं मिलता है। संचार संवाद समस्याएं होती है, बच्चों की जो भाषा होती है कम्युनिकेशन की वो अलग होती है, शिक्षकों की भाषा अलग होती है। तो यहाँ पर ये भी समस्या आती है, शिक्षकों को माता पिता, विद्यार्थी और अन्य सहकर्मियों के साथ अपने संचार संवाद में समस्या हो सकती है। उदाहरण भाषा की भिन्नता हो सकती है, जैसे कि मैंने देखा है लोकल लैंग्वेजेस होती है और लोकल लैंग्वेजेस के साथ अगर टीचर पढ़ाने जाए तो शिक्षक को यानी अध्यापक को लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, लेकिन बच्चों को वही लैंग्वेज समझ में आती है। तो यहाँ पर लैंग्वेज का भी थोड़ा सा ये हो जाता है, उनमें अंतर आ जाता है। समय की मर्यादा, सीमित समय रहता है, 45 मिनट का पीरियड रहता है और उसमें उसको पढ़ाना होता है। तो यहाँ पर टाइम लिमिटेशंस ये बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में। पुनरावृत्ति का अभाव, जैसे मैंने कहा कि सीखने को सुदृढ़ करने में मदद करती है। रिपीटेशन मांसपेशियों की याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है। रिपीटेशन स्मृति प्रदर्शन में सुधार करता है, अवधारणा में सुधार होता है। हमारे रिपीटेशन स्किल से अभ्यासक्रम को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने का दबाव होते हुए पर्याप्त पुनरावृत्ति लगभग असंभव होती है। अध्यापकों की समस्या है सीमित संसाधन, व्यक्तिगत संदेह निवारण के लिए सीमित समय, छात्रों की ज्यादा संख्या होना या अत्यंत कम संख्या होना, ये भी समस्याएं हैं। छात्रों में संकोच की भावना होना, छात्रों में भय की भावना होना, कुशल अध्यापकों की कमी होना, और फिर हम पेरेंट्स निराश हो जाते हैं। पहले तो हम स्ट्रेस में थे, अब तो हम निराशा में गए, एंग्जाइटी हमें आती है। लेकिन आपको कृपया निराश नहीं होना है, आपके पास जहां समस्या है वहां समाधान होता है। देखिए, तो हमें निराश नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को समझें। We have to understand the process of teaching and learning, and then we will go to the solution. I will find the solution. तो क्या होता है सीखने सिखाने में? मनुष्य की सीखने सिखाने की प्रक्रिया कैसी है? सीखने की प्रक्रिया दृश्यावलोकन यानी विजुअलाइजेशन से हम 80% सीखते हैं, श्रवण से हम 10% और अन्य माध्यम से हम 10% सीखते हैं। लगभग मस्तिष्क अपनी लगभग 90% जानकारी केवल 2 इंद्रियों से प्राप्त करता है, कान और आंख। लगभग 80% श्रवण से आता है यानी लिसनिंग से, और लगभग 10% जो आता है वो शेष लगभग 80% आता है दृष्टि से यानी आंखों से, और 10% आता है लिसनिंग से यानी ईयर से, और शेष 10% जानकारी जो है वो गंध, स्पर्श, स्वाद इन इंद्रियों के द्वारा हमारे बीच में वितरित होती है। तो सुनो, देखो, लिखो और सीखो, यही एक टेक्नोलॉजी है। श्रवण, चलचित्र और मूलपाठ यानी टेक्स्ट, समस्या समाधान के तत्कालीन परंपरागत उपाय। और इसी सिद्धांत पर आधारित हम बहुत सारे तत्कालीन उपाय भी हमने बना लिए, जैसे कि ट्यूशन है, कोचिंग क्लासेस है, ऑनलाइन ई अध्ययन वर्ग हमने खोल दिए। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स। और ये जो हमारी परंपरागत तरीके हैं सीखने सिखाने के, इसमें क्या फायदे हैं, क्या नफा नुकसान है, क्या तोटा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसको हमें कंपेयर करना चाहिए। किसी भी चीज को हम जब खरीदते हैं, हम चाहे फिर शादी का डिसीजन हो, चाहे कार खरीदने का हो, घर खरीदने का हो, चाहे स्कूल में एडमिशन का हो, तो हम कंपेयर करते हैं कि मैं जो दे रहा हूँ और मुझे जो प्राप्त हो रहा है इसमें से बेहतर ऑप्शन कौन सा है। तो फिजिकल क्लासेस और डिजिटल क्लासेस को हम जब कंपेयर करेंगे, डिजिटल क्लासेस तो कोरोना के कारण बहुत ही फेमस हो चुकी है, उससे पहले भी बायजू आया था, बायजू ने इसको ट्रेंड बनवा दिया था। कोई अध्याय या पाठ दोहराना संभव नहीं होता फिजिकल क्लासेस में भी। जो स्कूल में समस्या है वही लगभग समस्याएं कोचिंग क्लासेस में मिलती है। सीमित संदेह निवारण होता है, विद्यार्थियों के मन में संकोच रहता है, देहाती क्षेत्र में उसकी उपलब्धता नहीं रहती, जैसे कि बहुत दुर्गम गांव है, दुर्गम यानी ऐसे गांव है कि जो देहाती एरिया है, दुर्गम है, तो वहां पर तो कोई कोचिंग क्लासेस होती ही नहीं है। अरे मैंने कल मेरे एक दोस्त से मिला, लातूर में वो शिफ्ट हुआ है,
उनका मैं नाम नहीं लूँगा, मैं नाम किसी का लेता नहीं, क्योंकि नाम लेने से क्या होता है, उनकी निजता को हानि पहुँच सकती है। तो मेरे दूर के दोस्त हैं लगभग विदर्भ के, तो उन्होंने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वो लातूर में शिफ्ट हुए हैं। मैंने देखिए एक ज़िले में, उनके पूरे टेरिटरी में कई ऐसे कोचिंग क्लासेस नहीं जैसे लातूर में है एमबीबीएस के लिए। तो ये अनुपलब्धता भी रहती है, सीमित समय अवधि शिक्षक उपलब्धता, शिक्षक एक लिमिटेड टाइम में आते हैं 9 से, अभी तो 7 से क्या 11:15 या 7 से 11:45 हो चुका है। तो ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उसमें सब कुछ करना पड़ता है। विद्यार्थियों का अनावश्यक यात्रा में समय खर्च होता है, कोचिंग क्लासेस में जाने आने के लिए जो जर्नी ट्रैवलिंग करनी होती है उसमें उनको अनावश्यक समय उनका जाता है, उनकी एनर्जी जाती है, उनको जोखिम उठानी पड़ती है और खर्चा भी आता है। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में सीमित व्यक्तिगत ध्यान, मैंने देखा है कई सारे ऐसे कोचिंग क्लासेस है जहाँ 500 300 400 बच्चों को ठूस ठूस के भरा जाता है, और उधर से एक प्रोजेक्टर पर लगाए हुए ऐसा एक माइक भी बिल्कुल एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी लगा के वो शिक्षक अध्यापक पढ़ा रहा है, ना किसी की तरह पर्सनल कोई उसका अटेंशन है, ना वो किसी को पर्सनली एंटरटेन कर रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ बम्बार्डिंग कर रहा है अपनी इंफॉर्मेशन की। ये तो सब गूगल पे अवेलेबल है, तो फिर काहे वहाँ जाकर मिल क्या रहा है आपको? तो मानकीकृत दृष्टिकोण होता है, स्टैंडर्डाइज्ड, जिसको एटीट्यूड हम बोलते हैं, वो होता है वहां पर। कैसे कि ये यहाँ से आया है ना, ये शाहू कॉलेज से आया ना, ये तो बहुत बढ़िया होगा, इसको हमें अच्छे तरीके से करना, ये यहाँ से आया ना, इसको हाँ दे मतलब हम देख देख के करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं पहले ही, और उस तरीके से पूर्व दूषितता से शिक्षक वहां पर पढ़ा लेते हैं। बुद्धिमत्ता के अनुसार भी भेदभाव किया जाता है, जो अच्छे वो अगले बेंच पर, जो कम प्रोग्रेस करते हैं वो पिछले बेंच पर। तत्काल परिणाम, मूल्यमापन का अभाव, और यहाँ पर मूल्यांकन जो जिसे हम असेसमेंट कहते हैं या इवैल्यूएशन, उसका अभाव, तत्काल नहीं किया जाता। टेस्ट लेते 15 दिन पढ़ाते, फिर महीने के 15 दिन के बाद या महीने के बाद टेस्ट लेते, लगभग उसी लेसन के बाद तुरंत उनका टेस्ट होना चाहिए, लेकिन टेस्ट नहीं ले सकते, असेसमेंट नहीं कर सकते, समय एवं पैसों की लागत ज़्यादा होती है। गरीब लोगों के लिए तो ये मुमकिन ही नहीं कि इतने पैसे भर सके, मध्यम वर्गों के लिए भी ये महंगा साबित होता है दोस्तों। डिजिटल में कोई अध्याय या पाठ दोहराया नहीं जाता यहाँ पर, हाँ, लेकिन रिकॉर्डेड जो होते हैं वो आपको मिल सकते हैं। सीमित संदेह निवारण होता है, सीमित समय अवधि, शिक्षक उपलब्धता कम, जो लाइव सपोर्ट होता है वो कम होता है, विद्यार्थियों का ध्यान भटकता रहता है, छात्रों के साथ बातचीत की कमी रहती है, कोई भौतिक अध्ययन सामग्री नहीं दी जाती, सिर्फ एक टैब भी, वो भी आपको पैसे भरकर खरीदना पड़ता है, समय के प्रबंधन की समस्या रहती है, और उपकरणों के अनावश्यक खरीद में आपका पैसा जाता है। ये डिजिटल लर्निंग, तो हमने इसके आधार पर बनाया है ये फिजिकल लर्निंग मॉडल, जो डिजिटल भी है और फिजिकल भी है। तो ऑल लर्न हमारा खुद का सॉफ्टवेयर है, हमारा खुद का लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये खुद का हमारा लर्निंग टीचिंग प्लेटफॉर्म है, लर्निंग टीचिंग सॉल्यूशन है। यूँ कहें कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके कारण किसी भी बच्चे के लिए सीखना अब हो गया, जिसको आसान बोल सकती है। हमने गेमिफिकेशन कर दिया है इसका पूरा, इसको बच्चों को गेम पसंद है तो गेम के तरीके से हम सिखाएंगे, जिस तरीके से वो सीखेगा उसी तरीके से उसको सिखाने वाली टेक्नोलॉजी है। और इस फिजिकल प्लस डिजिटल इज इक्वल टू फिजिटल, यहाँ पर आपको फिजिकल बुक्स भी मिलते हैं और यहाँ पर आपको डिजिटल ऐप्स भी मिलते हैं, डिजिटल सपोर्ट भी दिया जाता है, और फिजिकल बुक्स आपको मिलते हैं जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं, जिसमें आप क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं, जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप एक बुक के साथ कर सकते हैं। एक क्यूआर कोड बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण बच्चों का सीखना यहाँ बहुत अच्छी तरीके से वो सीख सकते हैं। एजुटेक एक सरल उदाहरणों के साथ अस्तित्व में आया, ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, क्रिटिकल नहीं, ये बहुत सरल है कि लोगों का बजट कम है, लोगों के पास खर्च करने के लिए या तो पैसे कम है, या फिर जिनके पास पैसे है उनके भी पैसे ज़ाया होते हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। तो बजट के भीतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हमें देना है, क्वालिटी एजुकेशन सामग्री प्रदान करके छात्रों को शिक्षित होने में मदद करना है। अभिभावक तथा अध्यापकों की शिक्षा विषयक समस्याओं को सरलता से सर्वोत्तम समाधान प्राप्त करता है। हमें क्या करना है, जो माता पिता या अभिभावक है या जिनको हम पेरेंट्स बोलते हैं और टीचर्स बोलते हैं, इनके शिक्षा विषयक यानी एजुकेशन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, इनको सरलता से और सर्वोत्तम समाधान प्रदान करना ही हमारा यहाँ पर विजन मिशन है। तो अभिभावक, विद्यार्थी, अध्यापक सबकी समस्याओं का हम यहाँ पर समाधान प्रोवाइड करते हैं एजुटेक में। इसके फाउंडर है ऑनरेबल फाउंडर मिस्टर नीलेश जी खेड़ेकर सर, एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड और एनकेसीएल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर हमको ऑफिशियली इनॉग्रेटेड ऑन 4 सितंबर 2019 पुणे। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट थिंग।
ये टेडक्स भी कर रहे हैं। इनके प्रोफाइल के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। इनके ट्रेडिशनल बिजनेस तो बहुत सारे, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वेल एजुकेटेड भी है और कई सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं। इनके एजुटेक कंपनी के लिए इनको ऑनरेबल हमारे जो मिनिस्टर है, जो भारत में सबसे फेमस मिनिस्टर है, नितिन जी गडकरी के द्वारा अभी इनको अवार्ड मिला है, इंडियन अचीवर्स अवार्ड मिला है। इसके साथ इनको मिला है ये रिकॉग्नाइज्ड बाय श्री श्री रविशंकर अय्यर और इनको रिकॉग्नाइज किया है गौर गोपाल दास स्वामी, जो एक स्पिरिचुअल गुरु भी है तथा एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, रिकॉग्नाइज बाय ऑनरेबल। अब हमारा जो प्रोडक्ट है जिसको महाराष्ट्र के सीएम ने भी रिकॉग्नाइज किया है, देवेंद्र फडणवीस जी साहब, और मैं इनसे खुद मिला हूँ। ये सब मैंने तस्वीरें बताई, यानी ऐसी नहीं कि मैं अपने हवा में बात कर रहा हूँ, ये मैं इनसे मुलाकात की हूँ और उसके बाद मैं डिसीजन लिया हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना है, मेरी कंपनी को इसके साथ जुड़ना है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को इसके साथ जुड़ना है। सॉल्यूशन है प्रोडक्ट, सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, हमारा प्रोडक्ट है फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो करिकुलम, अगर हम कौन से करिकुलम को कवर करते हैं, तो इसमें 1st to 10th स्टैंडर्ड का पूरा करिकुलम हम कवर करते हैं। इसमें मीडियम्स अगर देखे जाए तो मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, अभी तो तेलुगु में भी आ चुके हैं हम, अंग्रेजी माध्यम है और थोड़े ही दिनों में हम सभी मीडियम्स में अवेलेबल हो गए। सेमी अंग्रेजी मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम भी है यहाँ पर हमारे पास, मराठी मीडियम भी है। बोर्ड्स अगर देखे जाए तो स्टेट बोर्ड्स है, सीबीएसई बोर्ड्स है, सप्लीमेंट्री कोर्सेज भी है हमारे पास जो पेरेंट्स के लिए भी बहुत उपयोगी है, जिसमें व्याकरण है, कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर है, साइंस है और आर्ट है। स्पोकन इंग्लिश कोर्स हमारा जो बहुत तेज़ी से अभी पॉपुलर हो चुका है, ग्रामर कोर्स है। क्या होता है जनरली जब आप स्पोकन इंग्लिश में जाते हैं ना, तो आप एक लगभग 45 दिन या 90 दिन का कोई क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद आपका वो डिसकंटिन्यूशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 18 महीने की आपको वैलिडिटी के साथ हम ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही हाईली स्टैंडर्ड कंटेंट आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करें, जिससे कि आप 18 महीने में इंग्लिश आसानी से बात कर सके। ये हमारा उद्देश्य है। और आज के डेट में अगर हम कितना भी कहें कि हमें मातृभाषा से प्यार करना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन हमें इंग्लिश पे भी कमांड होना जरूरी है। वी हैव टू कमांड ऑन द इंग्लिश बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ communication in the world wide also. So we have to must fluency in English, and so that we have developed this course for parents, students and teachers also, because lots of teachers are working in English medium schools, especially where the Marathi or other mediums languages are not allowed to speak in the classes. So you can develop your English fluency with this course. And then the grammar course is very important for everybody, and the cursive writing is a very crucial skills, and so we have introduced the cursive writing course. And then again हमारे पास कंप्यूटर कोर्सेस है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे बहुत बढ़िया कोर्सेस है। उसके बाद हमारे पास पिक्सेड आर्ट का भी कोर्स आता है, और इस सबसे महत्वपूर्ण और जिस प्रोडक्ट को मैं नमन करता हूँ, जिसको वंदन करता हूँ, ऐसा एक हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है फिजिकल श्रीमद् भगवत गीता। फिजिकल श्रीमद् भगवत गीता आज के डेट में देखा जाए तो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे चल रहे हैं, लेकिन संस्कार के बारे में कम है। तो उनको अच्छे संस्कार अगर हमें प्रोवाइड करने हैं तो हमें उनको स्पिरिचुअल वैल्यूज के बारे में बताना होगा। और गीता इज द कोडेड बुक ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। इसमें कोड है, हर एक श्लोक एक कोड है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर 3D एनिमेशन के साथ उसका यानी जो मूल संस्कृत का श्लोक है उसका भाषांतर, उसके बाद उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके बाद उसका स्पिरिचुअल मीनिंग, उसके बाद उसका जो आता है वो पर्सनल लाइफ में क्या आता है और प्रोफेशनल लाइफ में उसे कैसे यूज करना है उस मंत्र को, उस श्लोक को। तो ये पूरा अच्छी तरीके से इसको डिकोड कर दिया, और ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है आपको ये बुक, जिसकी आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अपग्रेडेशन आफ्टर एवरी 5 years, after 5 years 100 rupees per year, just only 100 rupees we charge for the upgradations after 5 years. After 5 years, before 5 years there is no any upgradation charges also. सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको। तो आप थोड़े से हम देखेंगे कंपैरिजन कैसे है। तो शिक्षा प्रणाली और पद्धतियाँ प्रत्यक्ष क्लास में देखेंगे तो ये अत्यधिक महंगा है, ऑनलाइन क्लासेस मध्यम महंगा हो सकता है, फिजिकल डिजिटल शिक्षा जिसको हम किफ़ायती बोल सकते हैं, और एजुटेक उसमें सबसे किफ़ायती है। जैसे कि हम देखेंगे अध्ययन सामग्री, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत क्लास अगर हम लेते हैं तो नोट्स के लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं, नोट्स बुक्स के लिए अलग से देने पड़ते हैं, क्लासेस की फीस अलग से, सब अलग अलग स्टडी मटेरियल ये वो क्या क्या चार्जेस उसमें
इन्वॉल्व रहते, निःशुल्क नहीं होता, अतिरिक्त भुगतान यहाँ पर करना पड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस में अतिरिक्त भुगतान यहाँ खरीद करनी पड़ती है, जैसे कि आपको टैबलेट खरीदना पड़ेगा, बाइजू अगर आप यूज कर रहे हैं, नोट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन फिजिकल मॉडल जो है इसमें कोई अध्ययन सामग्री के लिए अतिरिक्त भुगतान या खर्चा आपको नहीं करना पड़ता। और एजुटेक में तो आपको ये सब कुछ फ्री मिलता है। इसमें हम लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करते हैं, और क्विज में जो बच्चे टॉप परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम कैश प्राइसेस भी देते हैं। यहाँ पे पैसे खर्च नहीं होते भाई, पैसे अकाउंट में आते हैं, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो शिक्षा प्रणाली और पद्धतियों के अनुसार अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत क्लास में अगर देखा जाए तो उपलब्धता इसकी ग्रामीण तथा गरीब लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। ये उनके रिहायशी इलाकों से दूर कई क्लासेस होती है, उसके लिए उनको माइग्रेट होना पड़ता है। जैसे मैंने अभी बुल्डाना का एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई सारे लोग हैं, बुल्डाना ही नहीं तो महाराष्ट्र के हर जिले से लातूर में लोग आते हैं ताकि बच्चा MBBS बने, ताकि उसकी आकर 11वीं 12वीं का न्यू उसकी अच्छी बने। तो ये माइग्रेशन को हम रोक सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में ये सभी के लिए सुलभ तो है, लेकिन यहाँ पर एजुटेक देखा जाए तो ग्रामीण, गरीब, मध्यम वर्ग सबके लिए सुलभ, किफ़ायती और उपलब्ध है। रिपीटेशन का देखेंगे तो प्रत्यक्ष क्लासेस में कोई रिपीटेशन संभव नहीं होता, ऑनलाइन क्लासेस में भी लाइव रिपीटेशन नहीं किया जा सकता है। एजुटेक में आपको सीमित रिपीटेशन दिया जाता है और रिपीटेशन करने का सिस्टम यहाँ पर अच्छा है। समय सीमा सीमित शिक्षण अवधि 2 से 4 घंटे सिर्फ फिजिकल क्लासेस में, यानी क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में जाते हैं तो 2 या 4 घंटे वो पढ़ाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को। ऑनलाइन क्लासेस में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आपकी तरफ ध्यान देने के लिए किसी के पास समय नहीं होता। लेकिन फिजिकल और डिजिटल दोनों को मिलाया जाए तो असीमित समय बन जाता है। और एजुटेक तो आपको 24/7 सर्विस प्रोवाइड करता है। लचीलापन अगर देखा जाए तो लचीलापन इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है प्रत्यक्ष क्लासेस में देखी जाए तो। ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ पर लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। और फिजिकल और डिजिटल यानी फिजिकल मॉडल में अनलिमिटेड फ्लेक्सिबल मॉडल है। आप जब चाहे तब, जहां चाहे तब, जब चाहे तब, यानी समय की आज़ादी, लचीलापन हुआ, जब चाहे तब, जहां चाहे तब, हर कोई इसमें पढ़ सकता है। तो यहाँ पर हमने एजुटेक को ऐसे बनाया है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लचीला है, फ्लेक्सिबल है, जिसमें अगर देखा जाए तो एक बहुत किफ़ायती है। इसमें 24/7 विद्यार्थियों को टीचर अवेलेबल होता है, टीचर असिस्टेंट अवेलेबल होता है। ये ग्रामीण और गरीब मध्यम वर्ग के लिए भी किफ़ायती है। यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। स्टडी मटेरियल के लिए हमारे बुक्स यहाँ पर हमारे सब्सक्रिप्शंस के साथ आते हैं। आप ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन हमारे ऐप का, लेकिन आपको हम बुक प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में, और वो भी हाई क्वालिटी के बुक आते हैं और बहुत ही किफ़ायती तरीके से है। ऐसा कह सकते हैं हम कि ये मेड फॉर रिच, यानी अमीरों के लिए बनाया और गरीबों के बजट में हमने इसको बनाया है, ताकि इसको गरीब, मध्यम वर्ग या अमीर कोई भी इसको, इस प्रोडक्ट को यूज कर सके। तो ये क्वालिटी, हाई क्वालिटी, कॉस्ट इफिशिएंट, फिजिकल टेक्नोलॉजी के साथ पूरा हमारा ये आता है, ये अप्रूव्ड है, एक इसकी क्वालिटी गारंटीड है, बेस्ट सर्विस है, बेस्ट चॉइस है, ट्रस्टेड सेलर है इसके हम, और रिकमेंडेड है, 5.0 रेटिंग के साथ हम आते हैं। वी आर द विनर इन द मार्केट, lots of awards we have got, and the prices, you should guess the price. Just you have to pay the cost of 1 cup of tea every day, यानी एक कप चाय जितने खर्चे में आती है उतने ही खर्चे में हमारा ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो दोस्तों, इसमें कांटेक्ट करना है इस नंबर पे, जहाँ पर आपको ऑर्डर के लिए या फिर आपको कोई क्वेश्चन भी हो तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपको आंसर देंगे, आंसर करेंगे। आपकी अच्छी सर्विस करना हम यहाँ पर चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे, स्क्रीन पे दिए नंबर को नोट कीजिए और इस पे कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं, अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। बुक की होम डिलीवरी आपको मिलती है। आपका बुक एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है इसके बारे में आपको हमारे एग्जीक्यूटिव भी बता सकते हैं, एडवाइजर भी बता सकते हैं, और बुक में भी वैसे हमने टेक्नोलॉजी पूरी प्रोवाइड की हुई है। So thank you very much for giving your valuable time and staying with me. Stay happy, stay educated, learn more, earn more. Thank you, thank you, thank you very much, and thank you Edutek for giving me an opportunity to present this presentation to the clients. Thank you so much. Thank you. Learning never ends.